आप विदाउट कोलैबोरेशन विद इवन योर पीयर कॉम्पिटिटर्स आप नहीं चल सकते. आपके थोड़े बहुत पैसे बढ़ गए, आप उस पर खुश हैं. पहले आपने जब जॉब स्विच करते हैं, आपको जब एकदम से वो जंप लगता है, आप दैट्स अ थ्रिल. यार आई ट्राई टू वर्क बिटवीन द हाइब्रिड मॉडल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो. अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस करो, स्वात में हमने इसकी रिसर्च की है, आप अपना जीडीपी बढ़ा सकते हो. किसी फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव आप कहेंगे बैंक है 25,000 हैं, छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है. बट इससे ज़्यादा तो आप वकीलों के फीसों वगैरह में एंड ऑब्वियसली आना जाने में लग जाते हैं. सो इफ़ आई वाज, जैसे मैंने पहले बोला, आई इधर क्रिएट प्रॉब्लम्स और आई गो फॉर सोल्यूशन. सो आई गो फॉर सोल्यूशन. गोल्डमैन सैक्स और इसकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहते हैं कि इन द नेक्स्ट 20 years or something, पाकिस्तान की इकोनॉमी विल बिकम 1 trillion if it goes the way it is. Fadam, did you always know that you wanted to be a lawyer? या by chance, by accident, या by Yeah, truth be told. कैसे बन गए lawyer? Truth be told, I never thought I would be a lawyer, being very honest, because I was one of the confused youth जो होता है ना कि क्या करें. अच्छा जी, आईटी का बूम आया, आईटी कर देते हैं, फिर लॉ का बूम आया, लॉ करते हैं. But the reason that I went to the field of law was because of my mother, because it's a very personal story that is associated with it. So my mother passed away when I was 17 years old, just right before I was supposed to take my A-level subjects. No, I had taken my AS में मैंने law दिया हुआ था. So she and my father had gone to this gathering, so she met a few lawyers over there and she was very impressed. So she came home and वही मैं तो confused state में था कि BBA करना है, accounting करना है, CA करना है, no idea what I wanted to do. So she told me that why don't you pursue this? So I took law as a subject in my A levels, but I was planning on not doing it, to be honest. Most of my friends were going for a BBA in Bahria वगैरह में, उस वक्त ज़रा बड़ा in था ना, and all my friends were going there. So I thought कि मैं वही pursue कर. So but when she passed away, that's when I seriously thought that I should take it up. And then I did law. So it was personally, it was connected with her. But once I got into it, so I think I had the aptitude as well ताकि मैं इसको फिर आगे pursue भी कर पाए. Because a lot of people that I know, they do the LLB honors भी कर देते हैं, LLM भी कर देते हैं, बार तक कर देते हैं, but then they don't pursue it. Right. So it's just I find it as a waste of money and time. But I've been at it for almost now 15 years, so I think I had the aptitude as well to keep on going with this field as well. And in your career, आपकी थोड़ी सी trajectory के बारे में बताएं. Where did you start and how did you end up where you are today at Imarat? Yeah. So I'll have to again reconnect it with my personal side of it as well. So when I got done with my LLB, so one of my elder sisters, she lives in Sydney, Australia में, and I had gotten admission with UNSW as well. So मैं गया कोई 3-4 महीने पहले just to explore the city, just to see कि मैं adjust हो सकता हूँ. Adjust तो मैंने हो ही जाना था सिडनी में, वो तो हर कोई हो जाता है. But मैं वैसे ही, my dad sent me a few months. Now, so when I went there, so my uni was, you can say, was starting in May, June or something. अब मुझे से exact याद नहीं. And I went in November में. तो मैं कहा जो New Year's भी कर देंगे ना, बहन को free stay मिल रहा था and dad was sponsoring the trip. So, but when I went there for a few months, so when I used, उस टाइम पे ये आपको WhatsApp calls वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी, so we used to have Skype. So whenever I used to get on Skype with my father, so I used to feel that he's aging a lot. मतलब I felt that drastically in a month or so, he's aged a lot. Right. So, and I don't know, maybe it was the video quality, just I was feeling homesick or whatever that was. So then I came back to Pakistan and then I did वही जो होता है LLB के बाद आप law firms join करते हैं. Then I got an opportunity with Jazz. So Jazz में I started like really low in the food chain. So कहने को तो मेरे पास corporate job थी, but initially what the job that I used to do was कि I-9 में there was a warehouse जिसके अंदर not far away from here, जहाँ पे we used to go and around 9-10,000 agreements थे जिसको scan और उसकी filing और uploading. So basically I was a glorified librarian, आप उसको कह सकते हैं as a lawyer उस sense में. But then that helped me within 3 months because I kept at it, and another friend of mine who had joined, I'm sure it also helped you, that job, I'm sure it helped you become more grounded, or it helps in many other ways, right?
Did it Not not? really, yaar. It didn't? No, Really? no. Because usually I've spoken to a lot of people who've you know, who've come from, you know, like affluent backgrounds, but somehow उनके parents ने उनको इस situation में जानबूझ के भी डाला, कुछ हालात की वजह से हो गए, Agreed, and they went down, बिल्कुल grassroots level से start किया, grind को feel किया, and then you know came out, Phoenix वाला effect पड़ा उनके ऊपर. Did that happen to you So as well? my two of my mentors in jazz, initial part of my career, so I also divide jazz career into two. उसमें so one was Uzair साहब. So he used to always tell me कि यार जब तक तुम नीचे से मार नहीं खाओगे ना, हाँ, that's so it. there is no point of you becoming a head of a department because but नीचे वाले आपको they play you around. उस वक्त तो नहीं समझ आती थी, उस वक्त कहते क्या यार क्या ये इधर जाओ ये करो वो करो, ये सारी चीज़ें वीज़े करने की ज़रूरत पड़ रही. And then, so जो आपकी humbling वाली बात है, so then the second part of my career once Uzair साहब left, so there was Ma'am Sarwat, I'm sure you worked with her as well. तो वो उनको, and it's not like something that she used to preach, but by looking at her and her conduct, so she was one of the most strongest ladies in the leadership. But she was really humble and really grounded, so you could just walk up to her room. So I've tried to keep these two aspects in my career and moving ahead on them. Circling back to jazz, so jazz में then I spent around 6 years, met a lot of great people like you and made a lot of friends वहाँ पे. And then I moved to E.co. One thing that people keep on making a mistake on is that once you are leaving a place, you just burn all your bridges. Right. Or at the time when you are there, you are so occupied in that whole aura of it कि आप कहते हो कि यार I'll be the biggest snob there is with others and not be a problem solver, right? And with our field, we can always be a roadblock. We finance, HR, वगैरह. I always had this attitude of being the problem solver or at least giving a solution कि यार ऐसे कर देते हैं. This is the problem, but let's solve it this way. That has helped me with my career and I'll connect it once I'm going ahead. So when I went to my second job, E.co में, my ex-senior who used to work with jazz, she had moved there a couple of years before that. Right. But we had never spent more than, I think our total we've spent 5-6 months. साथ और उसमें भी 3 से 4 महीने I used to be in the record room. तो वो भी कोई उस तरह हमारे interaction तो थी नहीं. Right. But because she had seen my work ethic and she had seen the way I conduct myself, so she then proposed me for a job. अच्छा लोगों की एक और भी बड़ी गलत फहमी है कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो या सेकंड करते हो या रिकमेंड करते हो फॉर अ जॉब, इट्स जस्ट नॉट अबाउट द सिफारिश बिकॉज यू आर देन पुटिंग योर नेक ऑन द लाइन. अगर आपका कल नाम है, आपकी रेपुटेशन है, लोग ऐसे ही Exactly. एज्यूम कर रहे होते हैं कि यार ये बंदा इसको वाउच कर रहा है तो ही इज रिस्पांसिबल. So if I, for example, recommend you somewhere and you just mess up, वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी उन्होंने गलती की. The mistake would be always be mine, सर आपने कहा था, आपने recommend किया था, हम तो आपकी recommendation पे गए. And ये आप एक मुफ्ती का ना अपने ऊपर एक तलवार आपने लटकाई होती है. So you are then responsible for your performance and that guy's performance. And then आप उसकी पे भी नज़र रख रहे हैं कि यार वो गलत तो नहीं जा रहा. So then, अच्छा, बाय द वे, सॉरी टू कट यू देयर, यहाँ पे ना मेरा एक पर्सनल प्रैक्टिस इस तरह की है कि मैं लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, बट मैं साथ में ये बोल देता हूँ कि भाई आप खुद जज करो अपने क्राइटेरिया और मेजर के ऊपर. इफ़ दिस पर्सन फिट्स योर क्राइटेरिया, इफ़ यू आर हैप्पी विद इट, लेट मी जस्ट बी द कनेक्टर हेयर. मैं इतना रिकमेंड जरूर कर सकता हूँ कि मैं इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं लूँगा कि नोबडी नोस एनीबडी कि यार वो कल को बंदा वहाँ से चोरी करके भाग जाए. Nobody knows. तो रेकमेंड फिर भी मैं कनेक्ट लोगों को कर देता हूँ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात मैं शुरू में ही डिस्क्लेमर देता हूँ कि भाई आप लोग समझदार लोग हैं. See if this person fits the bill. If this person is somebody that you can use, go ahead. एक और मैं बात बताऊँ आपको. I do the same thing. But still end of the day ना आप अच्छा, you get responsible हैं. आप जितना भी आप ना disclaimers and Right. वो नीचे in the footnotes में आप चीज़ें अच्छा, डाल. I've been recommending decent people. मेरे पास कभी कोई मसला अगर हुआ आप नहीं. footnotes में भी डाल. नहीं शुक्र अदा का मुझे भी कभी इस तरह के इशू नहीं. But barring there's always this fear. Yeah, barring a couple लोग of them. घबराते हैं. Yes. लेकिन obviously you have that fear in sense. So खैर then I went to E.co, worked there for 3 years. Now again I'm reconnecting कि jazz के ही एक HR में Miraj used to be there who used to then work for Ubank.
Right. So when there was a position there, then he recommended me for so, that. so that's where your journey of So with you keep on- microfinance Yeah, so you started. keep on connecting with and microfinance was the first move that I did, which was planned. So E.co wali jo move thi, it was obviously Maureen was there, so usne recommend kiya. But the second thing was I was getting married in the next couple of months. So obviously then you have those all financial aspects in mind. And I'm a very practical person. I don't believe in, so I need to put some blocks in place for the building to be built. Right. Microfinance was the first one that was a conscious effort because I had done telco for almost, agar aap E.co was also an extension of the telco sphere. I had done it for almost 9 years. And I didn't want to get stuck in that. So it does help कि आप expertise हैं Right. आपकी, but then you're just stuck in that world. So अगर आपको कुछ और भी left right आए, हाँ, आप एक ही सिस्टम के पार्ट अगर इतने अरसे रहो Yeah. तो then you start thinking like a part of the system. Exactly. And going out of, thinking out of the box there becomes a bit of a problem. आपकी जो skill set है, you only get to use a certain number of Yeah. skills while you're at work at a certain place. So आपके कुछ और ऐसी abilities और skills जो हैं वो उस काम पे अगर use नहीं हो रहे तो वो फिर diminish हो जाते हैं with time. agreed. जैसे jazz में if I go back to it, तो jazz में ना we were very structured in a way. तो मेरा अगर legal में भी सिर्फ contracts बनाना है ना, तो अगर कोई litigation भी है मेरे उससे कोई Right. गर्ज नहीं है. वो जाने उसको टीम जाने, चाहे जो भी कुछ हो रहा है, बिल्डिंग को आग लग रही है, लोग बाहर आए हुए हैं, मेरा काम था कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना, मैंने बनाए, मैं घर चला गया. Right. जब मैं E.co मूव हुआ, E.co में हम थे ही दो, एक्चुअली 3 लोग थे हम. सो वन वाज अ पैरालीगल एंड देन वी वर 2. सो एक्चुअल लॉयर्स हम 2 थे एंड देन वी हैड वन अदर पर्सन. अब उसमें आप नहीं छुप सकते. उसमें अगर कोई भी लीगल मसला है वो आपका मसला है. यू कैन नॉट जस्ट स्टेप असाइड कि जी मेरा मसला नहीं है. So that what E.co taught me. And अगर मैं jazz में रहता, so I would have always been, and it's not a fault of jazz or the management, it's just a way natural that evolution department है. has been built या उसके जो systems बने हुए हैं उसमें you're not in the front line as you were Exactly. here at E.co, so that kind of gave And you jazz का भी एक natural evolution रहा, right? So it might have not been the way it was Right. in 194 में जब incorporate हुआ. When I was there, so it had almost been around 10-20 years हो चुके थे jazz को Right. after incorporation. Or so they were then used to that way of working, and then that's how people, once they come in, they get trained that way and then move on. So microfinance में आपकी journey short journey थी, but was it it was almost 2 years journey. Microfinance, yeah, start में, so you think कि यार when we used to work for Jazz ना, so हम ये Jazz Bank और ये जो हमारा microfinance sector था, हमने I had worked for it but not really paid much attention to it on the business operation end of it. Microfinance में once I came to UBank, you realize कि यार ये काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं for the grassroots. So the banking, maybe there are a couple of tiers में जो आते हैं, and then they work really down to the ground. So got to know of some city जिसका मैंने कभी ज़िंदगी में नाम नहीं सुना, सोचिए वहाँ पे भी हमारे branches हैं, lending हुई हुई है. And then how they help farmers, how they help females with gender diversity वगैरह उस तरह की. So how did you bridge that gap that आपका you come from a certain lifestyle, आपको उन cities के बारे में सुना भी नहीं है, but then you're also heading the legal department there, Yeah. and you have to interact with the staff in those Exactly. areas, and customers के भी issues होते हैं. So how did you bridge this gap of information? Did you go and visit those places yourself या To be honest, I didn't get the chance to visit all these places. You just get the chance to visit KSIP, जिसको हम कहते हैं. बस फिर ये case by case basis को आप deal करते रहे based So on your it was a lot learning of and hard knowledge. work that had to go in place. So I'll give you an example. I used to do this corporate governance for almost 10 years prior to joining UBank as Right. well. But the corporate governance level, uska totally was at 360 different as compared to when we used to do in our previous organizations. Right. अब वो जब 360 बिल्कुल ही डिफरेंट था, सो फर्स्ट इट हिट मी लाइक अ वॉल कि यार ये किस तरह होगा. ये तो हम तो बस ये कि जिन ने बोल दिया, हमने लिख दिया. अब ये नहीं है कि एग्जैक्ट, अभी जब से पॉडकास्ट शुरू है कि एग्जैक्ट आपने क्या बोला मैंने क्या बोला. सो ट्रांसक्राइबिंग मॉडल. आई ऑलवेज टेल माई टीम ना कि जो चीज़ें आपने पहले की होती हैं दैट ऑलवेज हेल्प यू. सो इफ़ आई कनेक्ट दिस बैक, सो विद इन माई लॉ फर्म डेज, सो व्हेन द फर्स्ट लॉ फर्म दैट आई जॉइंड, that used to be an arbitration firm. So what they used to do was कि वो गए बाहर,
वो जो भी उनकी बातें हुई वो रिकॉर्ड हुई, इधर देकर आए, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू देम एंड आई यूज्ड टू टाइप देम. Right. So I connected that with board minutes की drafting करना with microfinance after almost 12-13 years. Right. So वो एक skill वहाँ पे acquire किया था वो यहाँ काम yeah, आया. any skill that you acquire, you will never Absolutely. miss out on हाँ. it. तो वो, but still it was because I'd done it like around a decade or so back. So it takes time for the muscle memory और ये सारी चीज़ों को वापस आने में. So I used to like sit till like 2-3 रात को, after a meeting used to finish around 5, and I used to sit till like 2-3 बजे at night just to get this thing done, and then usually after a certain time फिर आपको थोड़ा बहुत grip आना You're शुरू. a very hands-on guy. I am. You need to get the job done, and if resources की कोई shortage है या distribution में कोई inequality है या आप short-handed हो या short-staffed हो, तो you'll do the job yourself. You make it happen. Yeah, I try to work between the hybrid model of macro and micro. Sometimes I do delegate a lot of things to my team, and the करनी पड़ती हैं. A good leader has to be able to delegate, but then of course कभी अपने हाथ गंदे करने पड़ जाते कोई issue so नहीं. अब so in Imarat जहाँ पे ना हमारे वो 3 चीज़ें in leadership we believe need to have. One is he needs to have a holistic view. So Right. अगर कोई मसला है उसका holistic क्या view है, क्या क्या XYZ मसले बन सकते हैं. Then वही है कि deep dive, उसमें in depth आपको सोचना पड़ता है कि जी till the last thing क्या हो सकता है. And the last one is hands on भी आपको होना पड़ता है. So हाँ. you cannot जैसे मैं अपनी टीम को अक्सर कहता हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ डेलीगेट की, इफ़ दे मेक अ मिस्टेक इट्स माई मिस्टेक, इफ़ आई हैवंट सीन इट, इफ़ आई हैवंट रिव्यूड इट, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इट्स माई मिस्टेक एंड ऑफ द डे. सो आई डू प्रोटेक्ट देम दैट वे. बाद में मैं उनके साथ जो भी करता हूँ दैट्स मेरा और उनका मसला. Of course. बट वी डू नो, आई नेवर थ्रो देम अंडर द बस कि जी मेरे उस वाले बंदे ने ये गलती कर दी तो उसकी गलती है, आप उसको फारिग कर. हाँ, ये भी हमारे कॉर्पोरेट कल्चर में काफ़ी कम है ये चीज़, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे. A lot of people get thrown under the bus just because of their designation या place in the hierarchy more than यार एक anything और भी else. चीज़ है ना जो आपको सोचना थोड़ा बहुत पड़ता है, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी आपको सोचना पड़ता है. सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द सैलरीज एंड द इंक्रीमेंट्स एंड द बोनसेस एंड तो कभी कभार आपको थोड़ा सा उनको, सो आई मेक इट अ बिट फन इन अ वे. सो मे बी माई वन ऑफ माई कोलीग्स, सो मुस्तफ़ा जो है मेरी टीम में, सो व्हाट आई मेक फन विद हिम इज़ कि अगर वो, सो ही वर्क्स फॉर कंप्लायंस. सो आई टेल हिम कि अगर तुम एक पॉलिसी बना के आओ, अगर उसमें मैंने 10 गलतियाँ पकड़ दी, सो आई ट्रीट यू, सॉरी यू विल ट्रीट मी. अगर 10 से कम हुई, आई ट्रीट यू वट एवर यू वॉन्ट. मतलब इट कैन बी लाइक समथिंग एज स्मॉल एज अ कप केक टू समथिंग एज बिग एज दैट. सो वी प्ले, आई काइंड ऑफ ट्राई टू कीप इट अ बिट फन. सो वो उस हिसाब से देख रहा होता है, नॉट बिकॉज वी कोई मुझे कप केक का या उसको है, लेकिन इट्स जस्ट टू मेक इट अ बिट फन द वर्क दैट इज बीइंग डन. Of course, you have to find that balance where your team feels comfortable, Yeah. happy more than anything else. टीम की हैप्पीनेस अगर आपका एक फैक्टर हो जिसको आप कंसिडर करें तो आपकी उनकी परफॉर्मेंस बहुत That's डिफरेंट हो जाती है. सो कमिंग बैक टू माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, आपका उसमें स्टिंट छोटा सा ही था, बट आई एम श्योर यू मेड एन इम्पैक्ट while you were there at You Microfinance Bank. बैंकिंग की एक ऐसी शाख जिसके बारे में हर पाकिस्तानी को इतनी मालूमात नहीं है जितनी होनी चाहिए. लीगैलिटीज़ में माइक्रो फाइनेंस के आई एम श्योर आपको बहुत ऐसे इश्यूज़ मिले होंगे जो आपने इस तरह के केसेस कभी ना कभी सुने भी नहीं, कभी देखे भी नहीं. कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपके जहन में ऐसी है, कोई केस या ऐसा कोई कस्टमर या कोई चीज़ जो आपके पास रह गई हो जिसकी आपने हेल्प की हो, या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसको रिजॉल्व किया हो एंड यू फेल्ट रियली ग्रेट अबाउट इट? So yeah, there was a lot of things. So initially, obviously, you were learned. अच्छा मेरे साथ blessing in disguise ये हुई. So when I joined the bank, उस टाइम पे ये हुआ कि most of the team had left the department. Right. So बिल्कुल ही आपको ना zero से पूरा processes, procedures, अपनी department की policies आपको बनानी पड़ी. Right. What that helped me was कि मैं obviously वही जो मैं बार बार कह रहा हूँ, hands on आप होना शुरू हो जाते हैं. So then every policy that you have made तो आपको उसकी समझ आती. अच्छा जो the one thing that I still remember is कि most of the cases जो हमारे होते थे, so I had come from telcos and I had, so उधर आपके थे litigation, there wasn't कि ये ऐसे बिल्कुल ही वो litigation free थे. मगर उस लिटिगेशन में पैसा इन्वॉल्व नहीं था. नो था उसमें भी. था, अच्छा, उसमें भी होता था कि टावर सिमिलर लेवल्स, हाँ यार टावर लगाया, टावर के वो पैसे नहीं दे रहे, फ्यूल थेफ्ट हो गई, इस तरह की. अच्छा हाँ, वो तो यस, वो तो ऑफ कोर्स जब भी कोई इदारा है वो प्रोक्योर करेगा चीज़ें, लोगों को रेंट भी देने होंगे. बट इसमें जो कस्टमर की बात हो रही है, जिसमें टेलको में जो कस्टमर है,
कस्टमर आप पे केसेस बहुत कम एग्जैक्टली सो करेंगे, राइट? माइक्रो फाइनेंस में ना द फर्स्ट टाइम जो मैं आया तो मैंने उनसे डैशबोर्ड्स वगैरह मांगे ना, डिफरेंट जो भी चल रहे हैं. सो आई वाज सरप्राइज टू सी कि जी वो लिटिगेशन का मेरे पास ना पहला दिन डैशबोर्ड आया ना कि 30 केसेस लगे हुए. सो आई वाज अच्छा यार 30 इज नॉट बैड फॉर अ माइक्रो फाइनेंस. 30 नहीं कहते नहीं सर 30 आज लगे हुए हैं. हमारे टोटल केसेस हैं 700-800 चल रहे हैं, जैसे मोर और लेस कस्टमर्स हैं वही के लोन लेके एंड देन दे कैन नॉट पे इट बैक. एग्जैक्टली, जब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और जब आप उस स्ट्राटा के साथ बात कर रहे हैं सोसाइटी के जिनको छोटे लोन्स चाहिए होते हैं. जब मैंने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ज्वाइन की थी उस वक्त हमारे जो लोन्स की जो थी ना स्ट्रेंथ वो 25,000 रुपए से 1,500,000 रुपए तक की थी. वो अब जाके कहीं जाके अब जाके ओवर 3 टाइम जाके million बढ़े. हुआ है. तो व्हेन यू टॉकिंग टू पीपल हु कांट अफोर्ड 25,000 रुपए, It breaks your heart. it breaks your heart, right? Yeah. And when those people find themselves in situations where either they're challenging the bank or the bank is challenging them कि वो 25,000 रुपए वापस लेने हैं किस तरीके से, Yeah. तो I'm sure situation awkward भी जाती होगी आपके लिए. Because if you see it from a third person perspective, आप कहेंगे बैंक है 25,000 हैं छोड़ दो क्या छोटी सी फर्क रकम है, पड़ता है. right? But- इससे ज़्यादा तो आप वकीलों के फीसों वगैरह में एंड ऑब्वियसली आना जाने में लग जाते हैं. बट देन द प्रॉब्लम इज जो लोग उस तरह ही समझे इट्स ऑल्सो टू इशूज. एक तो एंटरप्राइज लेवल पे वो 25,000 देन बिकम्स Of course. 2-2.5 Yes. बिलियन बन जाते हैं, राइट. सो अगर आप वो सारे छोड़ते रहें सो इट्स अ बिग लॉस टू द बैंक. एंड सेकेंड इट्स ऑल्सो परसेप्शन की, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज परसेप्शन का भी मसला है उसके अंदर. क्या अगर लोगों का आपके बारे में ये परसेप्शन बन गया कि ये बैंक जो है छोड़ देता है, Yes. देन दे टेक यू फॉर अ राइड. Yeah. सो ये एक मसला है. 3 चीज़ें जो मुझे आज तक आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इन यू बैंक के करियर में. द फर्स्ट वन वाज ऑब्वियसली लर्निंग द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो दैट्स अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन. अगले 2 हैं, एक था होम लोन्स जब हमने शुरू किए. सो इनिशियली द होम लोन्स में आई थिंक पूरे महीने में हमारे पास 2 या 1 केस आता था व्हेन द काइबर वाज हाई एंड द पीपल वर कोई इंसेंटिवाइज नहीं. जब वो इंसेंटिवाइज हुआ इट जस्ट वेंट ऑफ द रूफ. सो ऑन अ डेली बेसिस आई वाज डूइंग अराउंड 9 to 10 cases. So then that makes you feel good that so many people are getting their first houses, they're getting their first residential plots, or they're renovating the house that they had dreamt of renovating around 10-20 साल से वो जिस घर में रह रहे हैं, and now they finally gotten the chance to renovate that Yes. house. Yes. And it's a big thing. मतलब एक छत तो होती है लेकिन then you want कि improvement. Everybody in this world is looking to improve their lifestyle, improve from where they begin to where they end. It has to be a significant drastic एक change होना चाहिए, एक elevation होनी चाहिए. That's what everybody is striving for in this world. एक ये तीसरा ये कि जब हम वो दे रहे थे so we were giving these loans for now there's a very nice term of it. I don't want to say the word that's in my mind, पर जो स्टॉल्स होते हैं, राइट. सो दे द गवर्नमेंट CDA at that point in time उन्होंने बहुत ही अच्छा उसको ऑर्गेनाइज किया एंड देन वी वर गिविंग लोन्स टू पीपल to as a capex and then little bit as an opex as well. So that was a great initiative. मतलब उसमें Of course, आपके किसी एक्शन से अगर if you can see somebody's life or somebody's जी, livelihood improving, immediate आपको कोई रिएक्शन नजर आ रहा है आपके किसी एक्शन का, तो वो बड़ा मजा आता है. but if I tell you something, आपको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता. So when you are approving those zones or you're doing, तो आप उस वक्त, to be very honest, you are not thinking that I'm changing somebody's lifestyle. Right. It's a job that has come to you, one of the tasks that has come in your bucket. You have done it, you have passed it to somebody else, and now they are. It hit me when initially जब annual function was the first annual function जो मैंने बैंक का attend किया. And one of the guys जिसका मैंने लोन, because I remember that name of the stall जिसका था, and उसकी इन्होंने जब वीडियो बनाई, then it hit me कि यार it actually what you have done, you have made a difference in somebody. I could have easily rejected that loan on some, and उसमें था एक छोटा सा मसला था. So if I was, जैसे मैंने पहले बोला, I either create problems or I go for solution. So I go for solution. तो उसमें हमने छोटे से एक था एग्जैक्टली मुझे अब याद नहीं है, लेकिन हमने उसको एक एफिडेविट के थ्रू हमने रिजॉल्व करवा दिया. Right. And then that guy comes on the video on the annual function, and then that is a sense of pride that oh अच्छा चलो I could have and अगर वो ना मैं करता तो मेरी लाइफ में to be very honest कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था, because it was a case that would have just been brushed under the carpet. But उसको जब देख के, and then his family was also in that video, so it was a really nice touch to it.
It does feel good, and I can tell इसलिए कि मैं खुद भी फर्स्ट हैंड, ऑफ कोर्स मेरा भी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है. I've worked with the माइक्रो फाइनेंस बैंक for about 6 years. और मेरे लिए सबसे जो चैलेंजिंग बात यही थी कि मुझे भी पाकिस्तान के बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं थी. आई ओनली बिन एक्सपोज टू द KLIP दैट आई कीप रिपीटिंग, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर के अलावा मुझे नहीं आइडिया था. बट व्हेन आई जॉइन द बैंक तो मैंने बहुत एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया. और इनिशियली मेरे वन ऑफ द फर्स्ट असाइनमेंट्स दैट आई हैड वाज कंडक्टिंग रिसर्च. और वो रिसर्च मुझे लेकर गई KPK के अंदर बहुत दूर दूर तक, साउथ पंजाब लेकर गई, इंटीरियर सिंध लेकर गई. And I spent nearly a week at a station, and I kept talking to people from such downtrodden areas, and how microfinance, how small loans had changed people's lives. How they're also being misused, by the way. बहुत सारे केसेस थे, बट बीच में आपको 20 में से कुछ 2 लोग मिलते थे जिनकी लाइफ चेंज हुई होती थी. और जब उनकी अब स्टोरी मैंने जब सुनी तो मुझे तो बहुत इफेक्ट हुआ यार. इट चेंज्ड मी फॉर एवर, बेसिकली चेंज माई एंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ माई लाइफ. That stint. Yeah, I would also request those 18 people जैसा आपने बोला ना, and I being very honest, I understand the हालात जिसमें मुझ गया with COVID hitting, and then उसके बाद with floods आ गए, COVID हो गया, economy, everything drought आ गया, हर चीज़ आती है फिर आ जाती है हमारे पास. went through the roof. लेकिन the only issue is ना communication. जब आप बंद कर देते हो ना, so for example I'm sending you notices, आप जवाब नहीं दे रहे, मैं notice भेज रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे. Then at some point in time the patience levels, and that I mean corporate patience of course goes out. Yes. And once that goes out, then all hell breaks loose ना. मतलब फिर then वो जो मसल है वो आप कोई भी उसको compete नहीं करता. Corporate muscle will always remain there. Right. So मेरे लोगों से यही हमेशा request रहती है कि आप नहीं पे कर सकते तो get some time barred. आप थोड़ा उसको आगे कर दो, like आपके पास एक restructuring कर दो, commitment की हुई है, उसको आपने पूरा करना है one way or another, right? तो करना तो अच्छी बात है. Like example ये है कि मैंने आपको पैसे दिए, so I have done my part of it, right? When you were in need, I gave you money, I done my part. Now when I'm asking it back, and you had agreed to it कि मैं आपको वापस दूंगा. It wasn't like a charity donation, तो मैंने किया नहीं. So it was a business transaction जो मैंने किया और आपकी तरफ से. But that आपकी तरफ से जब नहीं आ रहा, so then obviously it leaves a bad taste. उसमें तो रह जाते. चलें जी, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री चेंज हो रही है, हमारी सारी बैंकिंग इंडस्ट्री चेंज हो रही है, सब कुछ अगले 2-3 साल में बड़ी मेजर शिफ्ट आने वाली है हमारी. पाकिस्तान, सॉरी टू कट, पाकिस्तान में तो मसला ये है ना कि देयर इज ऑलवेज दिस मशरूम इफेक्ट. जैसे मैंने पहले आईटी की बात की, जब आईटी बूम आया सब आईटी आपके मेरे ख्याल बहुत सारे यंग चाचा मामा सारे आईटी वगैरह में उस टाइम के जो थे गए. सेम गोज फॉर बैंकिंग. अब जब बैंकिंग का एकदम से व्हेन द विंडो ओपन, तो आप मशरूम इफेक्ट में ना बहुत सारे बैंक्स ओपन हुए. ना यू सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब वो बहुत सारे मर्ज हो रहे हैं, एक उसको ख़रीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. अब हमारा मसला ये है कि हमारी लॉन्ग टर्म 5-10 ईयर्स प्लानिंग होती है, एंड दैट गोज बैक टू द रेगुलेटर कि आप लाइसेंसेस कितने ओपन करें. इन अ वे अगर मैं उनको डिफेंड करूं तो यही है कि एक बैंक कैन नॉट पेनिट्रेट द होल पाकिस्तानी मार्केट, और 5 बैंक्स कैन नॉट पेनिट्रेट द पाकिस्तानी मार्केट. दैट्स व्हाई यू नीड these lower tier microfinance जो grassroots tertiary banks. आपके जो मेन आपके जो veins हैं, आपके जो major banks हैं, उनके साथ आपको tertiate करते हुए और banks चाहिए to reach the right populace. There's a fine line between the competition and then there's a fine line between excessiveness as well, right? अभी हम एक्सेसिव हो गए हैं आपके ख्याल में? Now we are वही जिसको कहते हैं मार्केट अपने आप करेक्ट कर रहा है, और करेक्ट इसी तरह कर रहा है कि कुछ अपने आप को कैनिबलाइज कर रहा है, कुछ उसको खरीद रहा है, वो उसके साथ मर्ज हो रहा है, 2-3 का कंसोर्शियम बन के वो एक को खरीद रहा है. सो यू नो दिस. बट अभी जो बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है वो इस्लामिक बैंकिंग का है. हमारा एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है towards Islamic banking, or that will affect the microfinance banking industry as well. कुछ नहीं दे भी दिया, जैसे U Bank was an Islamic license था उनके पास, and they were doing a good. When I was leaving, they just had started off with I think 10 branches across KLIP. But obviously बात है कि Islamic एक because you have a Sharia advisor who is backing it at the end of the day. So in terms of banking, it gives you that confidence. वो आपका ज़रूर है. जैसे मिज़ान I don't know. I'm not entirely convinced कि microfinance industry को आप effectively transition करा सकते हैं towards Islamic banking. Because microfinance industry आपकी पूरी चल ही एक system के तहत रही है जिसमें you have to charge an interest.
But वो तो अब you can also do it through this Sharia way as That's what well, I'm right? saying. There are Yeah. ways to go around the situation. आप उसको sugar coat, wrap, जो मर्जी कह लो, कर सकते हैं. I don't know. कुछ ना कुछ तो हो गई. But I'm personally never. I'm not going to be convinced कि microfinance I'm not, to be or very Islamic honest, banking. I'm not an expert at it at that at this point in time because मुझे उस तरह differentiating models on the upper level तो मुझे पता है कि क्या है, but I don't know it in depth. So I'm sure there are ways around it. But khair, you moved on from microfinance. You moved on to the most thriving industry of Pakistan, which is not show business or cricket sports, by the way. तो आप हैं जी आजकल डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉपर्टी और real estate. रियल एस्टेट जिसे कहते हैं. Yes. जी. So then I moved to Emirat. Initially, I was just looking at legal, and then over a period of now it's been 3 years, 2.5 years to 3 years. So now I have compliance, and I'm also the company secretary of the group, and then of the REIT as well on the side of it. So आपने काफी टाइम लगा लिया. Is this where you want to be for the rest of your career? Are you Yes, happy with the real estate? देखिए the problem with most of us is ना lack of जो आपकी information और perception पे जो आप चल रहे होते हैं ना, जब आप एक इंडस्ट्री में होते हैं, आप कहते हैं यार यही है, right? And then once I was in telcos, so I used to think कि बस मैंने telcos देखा. I didn't realize until I joined my current employer कि मतलब आप रियल एस्टेट का ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी डीलिंग ही ना, आपका घर है मैंने ख़रीदा उसको बेच दिया, उसने का घर है मैंने ख़रीदा उसको बेच दिया, रेंट पे लगा दी. It's much more, the canvas is quite bigger than that. So this, if worldwide, it's a $70 trillion industry, real estate. Of course, real estate ज़मीन है. Yes. ज़मीन की वैल्यू है. आपकी अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो ज़मीन के ऊपर ही हैं जिसको आपको Exactly. इस्तेमाल करना है. और लैंड इज़ लिमिटेड. लैंड एक्स्ट्रा नहीं आ रहा कहीं से, जो है उस पर पॉपुलेशन बढ़ रही है. हमारे मुल्क में ये बड़ा मसला है कि हमारी सारी पॉपुलेशन जो है वो छोटे शहरों से माइग्रेट कर रही है टुवर्ड्स बिगर सिटीज़, और वहाँ पे एक बूम जो आ गया पॉपुलेशन का, उसको संभालना, उसके लिए बहुत दूरस प्लानिंग की ज़रूरत थी बहुत अरसे पहले तक. कारण पहले तो हुई कि नहीं हुई, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत हो रही है. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना, दुबई में द शेख जायद रोड इज़ अराउंड 1000 फीट उसकी विड्थ एंड अराउंड 30-35 किलोमीटर उसकी, one end to the other end, more or less 30-35 kilometers. Every building अगर उसके ऊपर जो शेख जायद के ऊपर बनी हुई है, अगर आप उसका अभी इस वक्त वैल्यूएशन निकालें तो पूरा शेख जायद की जो बिल्डिंग्स वगैरह उसकी वैल्यू इस वक्त देखिए $200 बिलियन के इर्द गिर्द. राइट. You will be surprised to know that जिस एक्सप्रेसवे पे आप हर दिन आते जाते हैं, that's around 1200 feet. अच्छा, wider than that. That's wider than that, and the other thing is it's longer than that. हाँ, लॉन्गर का तो मुझे पता है. इट्स ऑलमोस्ट अराउंड, अगर आप इसको फैसल मस्जिद से देखें एंड डर्टी चौक, आई थिंक ज़्यादा ना भी हो 35 किलोमीटर इश तो है ही है. यहाँ पे पूरी वैल्यू बनी है ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स जो इसके इर्द गिर्द हैं $2 बिलियन. राइट. सो यू सी इफ़ यू डू प्लानिंग, और अगर आप इसको जोनिंग वाइज में आप करते, सो आप इसको the potential was of another $198 billion की आपके पास एक potential था जो कि हमने यूज़ कर दी. इमारात जो है ये इज इमारात मोस्टली एक्टिव इन द ट्विन सिटीज या बाकी जो कुछ शहरों में प्रोजेक्ट चल रहे हैं? So basically we work on our main motto, if once the company was or the group was incorporated, was to revolutionize the way real estate is thought. आपकी जो perception है about real estate, हमने उसको revolutionize करना है. And it's not very easy to say कि हमने सिर्फ एक segment को दिया. So what happens is that through one of our brands, Agency 21, we've built the largest estate agency network in Pakistan. Through Grana.com, we have moved into the online market space. Grana has been a game changer for everybody, Yes. literally. Yes, एक आम आदमी को भी Exactly. Grana की effectiveness का idea है. And we still haven't reached our potential with Grana. I'll be very honest on it. There's a lot of जो हम achieve करना चाह रहे हैं. I think we've just scraped जो ऊपर की surface है उसको किया हुआ है, but there's a lot that we can do with Grana. Then another one is PropMax.ai. So with that, our aim is to become the scientists in PropTech. Right. Do you know that in Pakistan हमने तकरीबन 5 million units की हमने digitization की है, and that was done by young professionals.
So we had this OPVS system जिसको हम one point verification system कहते हैं. So for example you have this in a planned area आपकी एक पॉकेट ऑफ ज़मीन है. Right. उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वो मुझे बता देता है कि वेदर दिस इज लीगल इलीगल, इसकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इसको कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्न करती है. ये जो ये आप मुझे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रहे हो, ये पूरे पाकिस्तान में सारी ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो सकता है या सर्टन सेगमेंट जिस पे आपने काम अभी किया हुआ हमने इनिशियली किया है. डू यू नो द पहली जो लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान की बनी थी, दैट वाज डन समवेयर गोरे के टाइम अराउंड 1930s में या 40 के अंदर कहीं पे हुआ. आफ्टर दैट इन 2018-19 में हमने किया है इसको डिजिटाइज रिम्स को. राइट. बीच में हुआ ही नहीं, ये डिजिटाइज ही कभी नहीं हुआ. आई एम नॉट सरप्राइज्ड. Yeah, आई एम डेफिनेटली नॉट सरप्राइज्ड, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि इसको डिजिटाइज करने का मतलब है कि बहुत सारे जो होते हैं लूप होल्स होते हैं आपके, वो ख़त्म हो जाएंगे. एग्जैक्टली. तो मैं और वो एक स्टेटस को चेंज करना जो है वो बड़ा मुश्किल था पाकिस्तान में. आई वाज कमिंग टू दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. सो जब हमने उसको डिजिटाइज किया, सो वी हैड अराउंड 5 मिलियन यूनिट्स हम उसको कहते हैं, जिसकी हमारे पास इस वक्त इन्फॉर्मेशन है, एंड वी कैन गो अप टिल अराउंड 20 मिलियन यूनिट्स इन पाकिस्तान और ऑब्वियसली मोर एज वेल. एंड दिस इज प्लान्ड एरिया. प्लान्ड एरिया से मुराद ये कि जैसे CDA ने इस्लामाबाद में एक नक्शा बनाया है, उसके अंदर ये I9 है, I9 के अंदर ये वेयर हाउस है, फिर ये F7 है, F7 के अंदर इतने घर हैं, ये मरकज़ बनेगा. दिस आर ऑल प्लान्ड यूनिट. अब अगर आप किसी अनप्लान्ड में आप बनाते हैं, सो वो उसके अंदर शामिल, वो जैसे आप उसको क्लिक करोगे वो आपको बता देगा कि अनप्लान्ड में. So अभी हमारी जो प्रॉपर्टी डेवलपमेंट जो हो रही है पाकिस्तान में, अब तो आई थिंक प्लान्ड हो रही है कि अभी भी अनप्लान्ड चल रही है. देखिए, वी वर्क ऑन मैं आपको बड़ा इसका ना, मैं बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही थ्योरियों वाला जवाब, मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा वो बता. आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या मैंने अगर डेवलपमेंट करनी है, चलो लेट्स गो फर्स्ट फ्रॉम योर एस्पेक्ट ऑफ इट. हाँ, एक आम आदमी की बात करते हैं, किसने इन्वेस्ट करना है. आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको मैं एक 4 लेटर का एक सिंपल फार्मूला बता. OADD. 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 Odd. Right. Right. So what you do is, so now let's take an example कि मैं डेवलपर हूँ, राइट. अब आपने मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करनी है. Right. सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि जिस ज़मीन के ऊपर मैं बना रहा हूँ, whether it's a vertical, whether it's a horizontal, क्या मेरे पास उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं भी कि नहीं. What happens usually is कि आप 100-200 कनाल आप ख़रीद के आप उसको बेचना शुरू करते हैं 400-500 कनाल पे, और फिर आप साथ लैंड बाइंग कर रहे होते हैं. Right. So when you have bought that 500th canal, maybe I did not have that ownership of it. Right. I had given you that file for it. Okay. And there's a big But possibility. actually handover नहीं हुआ था. Exactly. या वो pass down नहीं हुआ था. There's a big possibility that person who actually owns that 500th canal, he does not give it to me. So एक आम आदमी को डॉक्यूमेंट पे श्योरिटी कैसे हो सकती है देखने से कि यार ये बात ये ठीक है, मुझे यकीन हो गया. सो बेसिक ओनरशिप के ना देखने आपको पड़ता है कि किस रेगुलेटर के अंडर है. अगर CDA है तो CDA का आपके डॉक्यूमेंटेशन होती है. अगर वो आपके फॉर एग्जांपल रूरल वगैरह उसमें आता है, अगर CDA या DHA के अंदर नहीं फॉल कर रहा, सो देन देयर आपको वही इंतकाल वगैरह इस तरह की सब चीज़ें. एंड दिस इज द सर्विस दैट वी आर गिविंग नाउ, व्हिच वी आर प्लानिंग ऑन गिविंग बाय जून दिस ईयर. डिजिटाइज करके दे रहे हैं आप ये सर्विस. सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि नाउ लेट्स मी रन यू थ्रू इट. सो यू आर अ पर्सन हु वांट्स टू बाय, अपने अंकल की प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे हैं. राइट. You are somebody who's living in Ireland or in London, and you've hardly come to Pakistan. So what you do is you rely on whoever is the property expert in your family or friends. आप उस पर rely करते हो. बिल्कुल ऐसे ही. What he is doing, he is relying on either his own gut feeling और आगे जो उनके दोस्त यार हैं जो कि उनको बताते हैं कि अभी इन्वेस्ट कर दो फलानी जगह पे पैसा बढ़ जाएगा. Word of mouth ही है, because otherwise there are no proper channels for any of this information, right? So there's more or less a word of mouth जो कि basically trickle down चल रहा है. अब होगा क्या, what the service that we want to provide is कि आप बैठे बैठे आइलैंड में अपने ड्राइंग रूम में फॉर एग्जांपल आपको एक यूनिट आता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं. आपने क्लिक किया, आपको एकदम से उसकी जो आया कि जी ये प्लान्ड एरिया में और लीगल है. उसके बाद देन इट विल गो अहेड इनटू अनदर बकेट ऑफ कन्वेंस कि आप कहते हो यार मुझे और इसको वेरीफाई करना है. एंड कन्वेंस इज बेसिकली द लीगल पीपल ओवर हियर हु व्हाट दे आर गोना डू इज कि दे विल वेरीफाई द ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स टू यू एंड give you their feedback. It's going to be a proper उसके अंदर. Then अगर आप थर्ड पार्टी जो कि उसको वेट कर रही है, वेट कर रही होगी. राइट.
देन द अदर वन इज कि आप चाहते हो यार मैं खरीद रहा हूँ कि इसकी फिजिबिलिटी क्या है, सो वी कैन आल्सो गिव यू द फिजिबिलिटी ऑफ इट, राइट। एंड द फिजिबिलिटी इज नॉट जस्ट ऑन आर आप ट्रेंड बता रहे हैं कि जी प्रॉपर्टी की कीमत ये थी फिर ये हुई। मैं आपको 3-4 किस्म के ट्रेंड बता रहा हूँ। मैं Right. आपको जो ट्रेंड बता रहा हूँ वो ये है कि हैबिटेशनल एनालिसिस के, फॉर एग्जांपल आप शॉप खरीदना चाहते Great. हैं, हैबिटेशनल एनालिसिस उस शॉप की उसके इर्द गिर्द जो है वो कितने इन द लास्ट 5 years कितने परसेंटेज से बढ़ती जा रही है, राइट राइट। ओके। वन इज द हैबिटेशनल, द सेकंड इज कि उनकी बाइंग पावर कितनी है। सो फॉर एग्जांपल आप कल को इसको शॉप बनाते Right. हो या मॉल बनाते हो, वो हैबिटेशनल एनालिसिस के जो लोग हैं वो आपकी शॉप में आएंगे कि नहीं आएंगे, या वो Okay. कुछ खरीदने आएंगे या नहीं आएंगे, या सिर्फ घूम फिर के चले जाएंगे। दैट्स वंडरफुल। थर्ड वन इज जो एरिया की डेमोग्राफिक्स हैं वो किस तरह बढ़ रहे हैं, राइट, व्हाट्स प्लान्ड इन द नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो आपका रेगुलेटर है या जो CDA, LDA, KDA जो भी हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं उसको। सो इससे इतना मोटा एक होता है ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, राइट। और ये डेटा कहाँ से आप लोग एक्वायर कर रहे हैं? ये हमारा अपना R&D आप खुद क्रिएट कर रहे हैं? हमने खुद किया हुआ है। ये मतलब नेशनल सेंसस वाला डेटा नहीं है? सो इट यूज द नेशनल सेंसस एंड आपका सर्वे ऑफ पाकिस्तान Right. का डाटा एज अ फाउंडेशन। राइट। इट वाजंट कि अब हम उसी को रेप्लिकेट करके मिरर करके आपको दे रहे आप हैं। उसको वेरीफाई कर रहे हो, उसको that's- अपडेट कर रहे हो, Exactly. यू आर एडिंग मोर पैरामीटर्स Yes. टू इट एंड यू आर डूइंग योर ओन। तो ये आप लोगों की एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे चल रही है सर पाकिस्तान में? सो इन पाकिस्तान मेजरली इन द KIP के अंदर हमने तो कर दिया है Right. इसको, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट्स रैपिडली चेंजिंग मोड। सो अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। स्वात के अंदर अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आप फोकस करो, स्वात में हमने इसकी रिसर्च की है, आप अपना GDP बढ़ा सकते हो ऑफ दैट एरिया। राइट। यू कैन ब्रिंग इन 6 to 7 इंजन्स जो कि आपकी इकोनॉमी को उधर Wow. एनहांस करे, एंड देन आपकी उसका GDP ट्रिकल इफेक्ट ट्रिकल ऑन होते होते आपके पास यहाँ पे भी फील होगा। GDP आपका बढ़े। जब GDP बढ़ेगा तो अ पर्सन हु इज अर्निंग फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट टाइम 10,000 रुपीज, मे बी इन 3 to 4 years ही कैन अर्न अराउंड 1.5 लाख रुपए। Right. 1.5 लाख मेक्स हिम एलिजिबल फॉर मॉर्गेजिंग। सो बेसिकली आपकी बैंकिंग उसमें शामिल होगी, राइट। वाओ। बैंकिंग आपकी सो ये प्रेडिक्टिव मॉडल्स हैं आपके पास? एग्जैक्टली। बैंकिंग जब Wonderful. आपकी शामिल हुई तो बैंकिंग के बाद रियल एस्टेट ने वो घर बनाना है या उसको रेंट आउट करना है, तो वो फिर वो इन्वॉल्व होगा। That's amazing. सो यू नो इट कीप्स ऑन कनेक्टिंग। So this process is obviously something that you guys have initiated in Pakistan? या वी हैव आप लोग pioneers हैं। हमने आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट हमने किसी रेगुलेटर को 2 दफ़ा प्रो बोनो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया और दोनों दफ़ा उन्होंने उतार दिया, Right. बिकॉज वो फिर लोगों की वो I can understand, yes, कि हमारी land there's a huge chunk of our economy जो कि अनडॉक्यूमेंटेड लैंड के ऊपर भी चल रही है। Exactly. कुछ ऐसे जिनकी डॉक्यूमेंट्स मुख्तलिफ ओनरशिप में भी चल रहे हैं। there's a whole पटवारी माफिया जो कि फीड ऑफ कर रहा है for generations on the land that is present here in Pakistan. So I'm sure आपको road blocks और hurdles तो मिलेंगे, but Yeah, we keep are up the at good it, work we are because at it, ये बहुत obviously. ज़रूरी है। मुझे बताएं सॉरी मेरा वो OADD वाला yes, I was going to come back to that. yeah, actually. so मेरा OADD वो पे आगे चलते हैं। formula रह गया, we diverted into something else. So again अगर मैं revert back Let's just do the OADD. इसका मतलब बताएं मुझे। so the when wherever you want to invest in Pakistan with any developer, any society, आप ये formula आप याद कर दें। I would also urge the viewers to इसको याद कर दें, and it will help you make your investment secure. अच्छा, रियल एस्टेट का लोगों का ये परसेप्शन था ना कि पैसे डूब गए, ये हो गए। देयर इज आल्सो इन इंग्लिश सेइंग सेफ एज हाउसेस। सो सेफ एज हाउसेस का मतलब ये है कि रियल एस्टेट इतना सेफ है कि आप अगर आप थोड़ा सा It is still the safest investment. इट इज। सो देयर आर 3 मेजर इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तानीज करते हैं। इट्स ईदर रियल एस्टेट, गोल्ड, and the last one is stock exchange, more or less. Predominantly yes, जो मैं बात करूँ, ये म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक म्यूचुअल एक्सचेंज फंड, स्टॉक एक्सचेंज, डॉलर, फॉरेन करेंसीज वगैरह XYZ। अब आप कैन आर यू विल बी सरप्राइज्ड अराउंड 70 to 80% जो लोगों की सेविंग इट गोज इनटू रियल एस्टेट ऑन एनुअल बेसिस। 70 to 80% जा रही है। Yeah. वाओ। एंड इसमें मैं भी रेमिटेंसेस शामिल नहीं कर रहा। रेमिटेंसेस अनदर चंक दैट कम्स इनटू इट। वाओ। ओके, सो नाउ गोइंग बैक टू दिस OADD का एक तो मतलब ये है कि आप अपनी ओनरशिप वेरीफाई कर दें। पहला O stands for ownership. हाँ, अब लोगों को मैं आई फाइंड वेरी फनी, सॉरी टू से दिस, बट आई फाइंड फनी कि आप
करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लेकिन आप वकील के ऊपर 5-10 हज़ार रुपये नहीं खर्च कर रहे Right. ओनरशिप के लिए, Okay. राइट? सो द टिकट आइटम इज सो ह्यूज दैट यू नीड टू इस सिक्योर. पे आते हैं वकील पे लोग क्यों नहीं खर्च कर रहे, लेट्स जस्ट Then the second one is regarding approvals. So right, vertical के अपने 16 approvals हैं, horizontal के there is another set of 17-18 approvals. जैसे vertical में आपका civil aviation आ जाता है, उसकी approval height वगैरह ये वो सब. So you need to see that whatever the project that's on paper या it's under construction, उसके बाद वो approvals हैं कि नहीं. अगर उसके बाद एक भी अप्रूवल नहीं है, so then that's a risky business which can, वो वर्टिकल शायद बन भी जाए किसी तरीके से, पर वो कभी ना कभी बंद होता रहेगा. एंड देयर हैज बीन अ फ्यू मॉल्स जो कि आपके सामने, आई डोंट वांट टू नेम देम, जो बन गए, लोगों ने इन्वेस्ट किया, नाउ दे आर स्टक. वो ना उधर के हैं ना इधर के. सो यहाँ पे अप्रूवल्स पहले चेक करने चाहिए Yes. बेसिकली, राइट? एंड देन द थर्ड वन कम्स डिमांड जो मैंने अभी right. आपको पहले बताया. सो हमारा वही जो मैं अगेन आई एम रिकनेक्टिंग विद द स्टार्ट वन, जो मशरूम इफेक्ट. मशरूम में ये है कि मेरा मॉल अच्छा चल गया, आपने भी आधे किलोमीटर बाद आपने भी बना दिया, उन्होंने भी बना दिया, उन्होंने भी बना दिया, तो आप कहना मॉल 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 मॉल. जैसे मैं पेशावर से हूँ, सो पेशावर में एक प्लाजा अच्छा चल गया किसी का, एंड देन वो यूनिवर्सिटी रोड प्लाजों से भर गई ना. वाओ. अब वो प्लाजे उस टाइम आपको बड़ा मज़ा आ रहा था कि प्लाजा मैं बना रहा हूँ, और देन यू आर यूजिंग दैट 1% एक्सेप्शन कि जी उसको इतना रेंटल मिला तो इतना तो मुझे मिल ही जाएगा. Right. दैट्स नॉट द केस. अभी हमने इसकी एक और जो एक रिसर्च किया है, सो देयर अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 250 ब्रांड्स इन पाकिस्तान, छोटे मोटे सब मिलोगे. नाउ द बिग ब्रांड्स जो टियर 1 जिसको आप कहते हैं, व्हाट दे डू इज दे गो इन अ कंसोर्शियम टू अ मॉल, एंड दे डू नॉट गो इनटू द मॉल मोर और लेस ऑन रेंटल मॉडल. Right. ये भी लोगों की गलत फहमी. दे मोर और लेस गो ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल. राइट. रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के मतलब ये कि मेरा एफर्ट ये है कि मैंने फुटफॉल उसके अंदर जानी है. फुटफॉल हु विल बाय, जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी मेरा 10,000 का हाँ, फुटफॉल है. वो एक मॉल में आपको दो तरह के लोग मिलते हैं ना, एक तो बायर्स हैं, दूसरे वो एक जिनको धूप से बचना है, वॉक करनी है, थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, एंटरटेनमेंट के लिए कोई That's आइसक्रीम fine, खा लेंगे, that's- वो भी वो लोग होते हैं फुटफॉल वाले, बट वो आपके रेवेन्यू जनरेटिंग Exactly. आपका कस्टमर नहीं है. No, but to be honest ना, people के गलत एक impression. That person who walks in even for धूप से बचने के लिए, वो कम से कम पेप्सी तो पिएगा ना. राइट. हाँ, मतलब कुछ कम ना से कुछ कम हो जाने चाय के तो वो देगा ना. ओके ओके. जो भी वो ही मगर उसका आरपू बहुत थोड़ा होगा. आरपू उसका छोटा है, लेकिन एटलीस्ट वो है उसमें. कुछ से कंट्रीब्यूट कर रहा है वो. नाउ जब वो मूव इन होते हैं टू अ मॉल विद रेवेन्यू शेयरिंग, तो फुटफॉल उनको चाहिए होता है. अब मसला ये है कि एक द बिग टियर 1 ब्रांड, उनका ऑलमोस्ट केपेक्स इज समवेयर अराउंड 50 मिलियन से लेके अराउंड 100 मिलियन के बीच टू ओपन अप देयर Right. फ्लैगशिप स्टोर और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम. मे बी उससे थोड़ा कम भी हो, थोड़ा ज़्यादा भी हो, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट दिस इज द एवरेज आउट नंबर्स. अब वो जब वो लगाता है, और सो व्हाट दैट ब्रांड विल नॉट डू इज कि वो 2 किलोमीटर बाद एक और मॉल के अंदर फिर वो इतने पैसे लगे. राइट. सो एक मॉल जो है अगर अच्छा बनाओ, इट कैन सर्व अप टू अराउंड 7 किलोमीटर के रेडियस Of में course. वो सर्विंग करता है. I'm glad that we're talking about this because this is exactly what I noticed. As somebody who just drives around in the city and realizes कि यार ये तो जो मॉल हमारा एक सेंट्रल मॉल था which was fine, but then एक मॉल खुल गया, वो भी ठीक है, 3 हो गए, 5 हो गए, अब तो 8-10 मॉल खुल रहे हैं, और हर रोज़ मैं नए बोर्ड देख रहा हूँ कि यार पाकिस्तान लार्जेस्ट, पाकिस्तान फर्स्ट, थीम आपके मॉल्स आ रहे हैं. बट जब मैं इन मॉल्स में अंदर जाता हूँ जो कि ऑलरेडी पॉपुलेटेड हैं, वहाँ पे मुझे एक ही ब्रांड्स नज़र आते हैं. Exactly. एट द कोर उन ब्रांड्स को कितनी विजिबिलिटी चाहिए, उन्होंने कितनी अपनी रिटेल आउटलेट्स खोलनी है, कितने मॉल्स पॉपुलेट होंगे. आई डोंट नो, ये जो बूम है आपकी कंस्ट्रक्शन वाला, ये सस्टेन करेगा आपके ख्याल में? असल में कोविड ने भी ना आपको एक और भी आदत दे दिया, ऑनलाइन डिलीवरी. Oh, yes, राइट. सो absolutely. दैट्स अनदर सप्लाई चेन जो एक मॉडल आपका शुरू हो गया, जिसके अंदर मे बी आपका टियर 1 goes into it because they need that presence, right? They like that grandeur of Absolutely. it, right? The tier 2s, maybe they might not go into हाँ, all वहाँ of पे them. cost and footfall and everything Exactly. else, they depend And on then everybody tier else. 3 are much more happier to be on the social media platforms, हाँ. these different Insta Yes, वगैरह ये वो agreed. उसके ऊपर.
बिकॉज इस ऑन अगर आप उसको ऑन एन ओपेक्स वहाँ के पे पेक्स आपके देखो, एब्सोल्युटली आपका ओपेक्स बहुत डिफरेंट है, आपका कस्टमर आपके एक्सेस में है, यू नो एग्जैक्टली हु इज इंटरेक्टिंग विद योर ब्रांड, तो Yeah. वो तो आप मैच नहीं कर सकते कि एक मॉल के। तो ये मॉल्स जो आप लोग अभी डेवलप कर रहे हैं, डू यू स्टिल सी दिस एज अ सस्टेनेबल? so I go one by one on it, and I don't want to do any marketing of it, हाँ, but okay. I'm just saying it on Right. उस लेवल पे। so हमारा पहला मॉल था Amazon आउटलेट मॉल। अच्छा, Amazon जब हमने खोजा, उसके जो मैं अभी जो बात कर रहा हूँ उसी को मैं कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला हूँ। 2 किलोमीटर के बाद गीगा मॉल है वहाँ पे, राइट? आई डोंट वांट टू नेम नेम्स, लेकिन सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट वन ऑन दैट साइड। यस। So then it's also your ingenuity how you switch it, right? So we made it into a factory outlet mall. Once we started off with it, so it's for that year that does not want to Right. go to that mall, but it has Which works, by the which way. works. I'm a frequent visitor there myself. So per square feet, अगर हम footfall की बात, I think we are the highest on that one. Right. आप उसी पे आगे जाएं, so then we have a hotel suite वगैरह है, and that hotel suite was built, which is I don't know if I can name it, but one of the biggest brands of the world. उनके साथ we are collaborating with them, so Right. उनका hotel suites हैं जिसके अंदर, because what we after our research we got to know that a lot of people जो business minded होते हैं या जो business से related होते हैं, they come and visit this area जो GT road आपकी बनती है, Right. which is one of the arteries of it, right? They cannot afford to live in these expensive hotels, right? So what they do is कि वो they look for these guest houses or a PG set. So वो hotel suite is like a service apartment Right, concept right. है, right? Then उसी road पे आप आगे जाओ तो then there is Emarat Builders Mall. So it's a one-stop shop for anything that required for construction. यानी कि आप सब स्पेशलाइज्ड मॉल्स की तरफ आप लोग जा रहे हैं, they're not all Yeah. for like retail shopping for No. everybody. So That makes sense. IBM will be then in the future. The plan is कि IBM will be then engineered by और उसको supply मिलेगी from factories that we want to build in. Right. So जो आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसको हमने रिड्यूस करना है। उसमें 2 फ़ायदे हैं, हमें भी फ़ायदा है, सो वट एवर वी वांट टू कंस्ट्रक्ट हमारी कॉस्ट, और आपको भी फ़ायदा है। इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, यू जस्ट वॉक इन, यू मीट एन आर्किटेक्ट ओवर देयर, वी हैव दोज आर्किटेक्ट्स, दे मेक अ 3D। अभी वी आर डेवलपिंग दिस अनदर वन के आप अपने डायमेंशंस लोगे घर के, 5 मरला 10 मरला 1 कनाल, टाइप ऑफ किस किस्म का घर चाहिए आपको, विद इन 1 क्लिक वो होम AI के थ्रू घर बना So this is where AI is now being integrated. So our dev team is Wonderful. working on it, and you'll be surprised to know that in real estate our dev team is around, we are around 80 strong, जो कि making our own ERP systems, our own client portal systems, our own so what we are making is a WorkSAP system जिसकी वजह से हमारा 20% of our sales productivity has gone high. So, That's amazing. So we are connecting technology to the conventional जो लोग कहते हैं ना real estate property dealing, वो नहीं है. So it's connecting everything, is becoming part of that ecosystem. Blockchain जिस तरह वो बन रहे हैं सबके. और आप लोग बहुत सारी नई तरह की जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं। Exactly. आपके जो एजेंसी 21 है और आपका ग्राना है, इसके ऊपर आप जो वर्क फोर्स है, they're all young people and Young they're all people, very happy with the way they're well dressed, well suited, absolutely. well educated, and They're changing the entire culture of this Exactly. property dealing, जो एक concept था ना property dealer वाला, वो अब change होता जा रहा है, which is pretty cool. देखिए, क्योंकि academia has also never worked on. अब आप मुझे बताएं, do you remember any school or university who teaches real estate as a subject? Never even heard of Never even heard such of a concept. Absolutely not. And it's one of the biggest sectors जिसके साथ 200 industries आपकी connect हो रही हैं. So I think we need to go back to a drawing board. I'm just not talking about the real estate as well, but we need to see. I personally feel that we need to scratch our education system and come up with something that is practical now. Because मैंने आज तक अलजेब्रा का A+B=C² तो मैंने तो कहीं नहीं अपने ज़िंदगी में कहीं इस्तेमाल नहीं किया. ये अलजेब्रा इज नॉट फॉर एवरीबडी, ऑब्वियसली यू राइट. हम भी मैथमेटिक्स जो सीखी है उसको बड़ी सिंपल और एप्लीकेबल जिसकी फॉर्म है वही इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल कैलकुलेटर पे हो जाती है या अक्सर लोग दिमाग में कर लेते हैं. बट यू राइट, हमें एजुकेशन सिस्टम को रिवैम्प ओवरऑल करने की ज़रूरत है. मुझे बताएं, हमने आखिरी डी के बारे में बात कर ली. Oh yeah, so that was delivery. Delivery. The one that we talked on was demand, and the last one is delivery. Delivery से मुराद ये है कि for example I am the developer, so आप मेरी credibility check कर दो.
whether in the past I have delivered something or not. Okay. या मैं बिल्कुल नया तो नहीं. So what you यानी said, कि नए डेवलपर के लिए कोई खास स्कोप नहीं है घुसना अभी yeah, it's not really, it's not that kind of a thing. But वही बात है कि अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. So there एक बड़ा एक अच्छा वर्टिकल है रेवेन्यू स्ट्रीम का, वो है कि आप बना रहे हो फॉर एग्जांपल डिवाइस, मैं उसको बेच रहा हूँ, राइट. अच्छा, अब उसके अंदर अगर आप नोट करोगे हमने एंड आई वुड अर्ज यू टू चेक इट एज वेल ऑनलाइन, तो आई थिंक हमने पूरे अपने करियर में सॉरी जो हिस्ट्री रही है, आई थिंक हमने 7 से 8 प्रोजेक्ट्स किसी और के हमने सेल एंड मार्केटिंग की है. राइट. आई माइट बी रॉन्ग ऑन द नंबर, लेकिन आई थिंक लेस देन 10. आप यानी कि अपने हाथों पे काउंट कर सकते हैं. लेस देन 10-ish ही है. ठीक. उसका एक रीज़न ये है कि जब हम उसके साथ वो करते हैं, हम पहले तो ऑर्ड पूरा उसके ऊपर करते हैं ना, हर डिवाइसर पर उस ऑर्ड में पूरा नहीं आता. राइट. जब आखिर में वो जाती है ना, अगर नया डिवेलपर है उसकी जो पीछे उसकी जो डिलीवरी का स्टेटस है, हम उसको कहते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल 1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, आपके पास 20% इस वक्त आपके बैंक में होने चाहिए. राइट. एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम. So whenever there's an economic turmoil, installments late हुए, ये हुआ वो हुआ, you have that much money to pump into that. अच्छा, दुबई में क्या होता है? दुबई में there's a whole this escrow system and all that. Escrow से मुराद ये है कि मैंने स्टार्ट में सारे पैसे उसके अंदर डाल दिए. राइट. कल को गॉड फॉरबिड मैं bankrupt हो जाता हूँ या आई एम नॉट एबल टू फुलफिल माई ड्यूटी, सो व्हाट द गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट टेक्स ओवर दैट बिल्डिंग और वो उसको फिर आप ही के escrow के पैसों से वो पूरा कर देते हैं. राइट. ऑलराइट. तो एज एन इन्वेस्टर यू आर सेफ. राइट. आपने जो आपको सुनने को भाग गए, ये हो गया वो हो गया, डूब गए ये हो गया, उस हिसाब से यू आर सेफ. अब वी बीन रियली चैम्पियनिंग और हम उसको बहुत ज़्यादा एडवोकेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक रेरा होना चाहिए, रियल एस्टेट रेगुलेशन हमारे होने चाहिए. पाकिस्तान के अंदर देयर नीड्स टू बी अ लॉ ऑन रियल एस्टेट बिकॉज दैट्स समथिंग दैट विल, 2 फ़ायदे हैं उसके. आपका ज़्यादातर जो इशू रियल एस्टेट के साथ है, इट्स लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज टू मैल प्रैक्टिस. ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी तो वही आपकी लैक ऑफ उसके अंदर है. राइट. सो दैट लीड्स टू मैल प्रैक्टिस के अंदर. अब नाउ द प्रॉब्लम है कि जैसे आप इंडिविजुअल हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, वो अब इतना ऑर्ड नहीं कर सकता. राइट. वो इतने दफ्तरों के चक्कर नहीं मार सकता. बिल्कुल. अब इफ ही और शी हैज़ अ 1 विंडो ऑपरेशन कि यार आपका रेरा का लाइसेंस है फॉर एग्जांपल टू से, देन लायबिलिटी सारी रेरा पे चलेगी. एग्जैक्टली. रेरा इज देन माय रेगुलेटिंग अथॉरिटी. राइट. तो अब रेरा, अब उसको बेचारे को ये नहीं करना कि मैंने उस अथॉरिटी के पास भी जाना है, उसके पास भी जाना है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो सारी चीज़ों से वो, सो इट्स इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस की भी एक बात आ जाती है. हाउ फार आर वी फ्रॉम रियल लाइफ रेरा? आई होप it keeps on coming every now and then. I would not want to put a date on it because we should hold our breath over it basically. No, you can, but it depends on, somebody has to just hold it by the scuff of the neck and just champion it and just get it. और थोड़ा long term vision रखने की जरूरत है. Exactly. Right. Short term में आप नहीं हो सकता वो. हाँ. ओके. अब जहाँ तक शिफ्टिंग डायनामिक्स की बात आ रही है हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसका आप भी पार्ट हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वाली बात. कि इंस्टेड ऑफ कि मैं सारे पैसे डाल के कुछ चीज़ खरीदने के चक्कर में हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, सो आई कैन बी अ पार्ट ऑफ अ ट्रस्ट दैट बायज समथिंग एल्स फॉर मी. टेल अस अबाउट दैट, हाउ इज दैट इवॉल्विंग? अच्छा, सो रीट जो है ना, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वही बात आ जाती है. एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस. अब रीट के अंदर देयर आर लॉट ऑफ कंप्लायंसेस जो आपने पहले पूरे करने होते हैं. Right. अगर मैं इसको बिल्कुल लेमैन टर्म में किसी को समझाना चाहूँ, इट मीन्स टू से कि मैंने और आपने और उन्होंने, हम सब ने पैसे में जाके हमने एक शॉप खरीदी. राइट. अब उसको मैं कनेक्ट करता हूँ एक और लेमैन टर्म का स्टॉक एक्सचेंज में. अब मेरा जो पोर्शन है, अगर फॉर एग्जांपल वैसे अगर हम चारों पैसे बना के एक फॉर एग्जांपल 20 लाख की दुकान खरीदते हैं, so all 4 of us need to sell it or 1 of us need to sell it to the 3 of us, और इस तरह के डायनामिक्स हैं आपके बेचने के. इसमें यह है कि अगर हम चारों का मिलके वो पैसे मिलके वो शॉप खरीदी गई है और और वो अप्रिशिएट हो रहा है, सो आप अप्रिसिएशन अमाउंट के साथ एग्जिट कर सकते हैं एंड समबडी एल्स कैन कम इन. राइट. यानी कि आपका जो शेयर है, आप उसके इंडिविजुअल ओनर भी हैं, बट आपकी लायबिलिटी उसी के ऊपर है. एग्जैक्टली. और आप उसको जब भी चाहो डिस्पोज ऑफ कर सकते हो
और जब उसकी अप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन होगी तो वो आपको इंडिविजुअल इफेक्ट करेगी. या सो इट्स बेसिकली कमिटी प्लस स्टॉक एक्सचेंज, आप समझो ना, आप जॉइंट ओनरशिप प्लस. वंडरफुल. दिस इज द मोस्ट लेमैन टर्म में जो मैं, वैसे तो काफी इसकी सिग्निफिकेंट नहीं, you've hit the nail on the head actually. समझा दिया, मुझे भी समझ आ गई एक्चुअली इसका मकसद क्या है. एंड देन उसकी असल में 26 लाइसेंसेज इस वक्त निकले हैं रीट के. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 5 से 6 ही अभी इस वक्त लाइसेंस रीट हैं. वी आर गोना बी वन ऑफ देम जो अभी आने वाला है. राइट. रीट से एक फ़ायदा ये होता है कि आप कैपिटल मार्केट्स को जा सकते हैं. राइट, कैपिटल मार्केट्स कैन इन्वेस्ट इन योर प्रोजेक्ट. अब ज़्यादातर अगर आप बैंक्स देखोगे वो रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते बिकॉज पीछे लॉ नहीं है, बिकॉज ऑफ मैल प्रैक्टिस. उनको एक डर लगा रहता है कि हमने 1 बिलियन 2 बिलियन उसमें इन्वेस्ट किया, पैसे ना डूब जाए हमारे. फिर वो कोलैटरल्स मांगते हैं. हर डेवलपर के पास कोलैटरल इतना होता नहीं है कि वो दे सके. यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स. जो जमीन का कोलैटरल हमारा वैसे भी अभी भी हाथ से लिखे हुए पर्चे हैं, बहुत जगह पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी से लेकर उनकी अवेलेबिलिटी से लेकर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप से लेकर सो मेनी इश्यूज. आप मॉर्गेजिंग वगैरह बैंक्स कर देते हैं, टाइटल डीड्स अपने पास रख देते हैं, बट देन देयर इज स्टिल अ रिस्क इन्वॉल्व. राइट, इससे ये होता है क्योंकि आपको पीछे बैकअप कर रहा है दो. इसमें जो रियल एस्टेट में जो रेगुलेटर नहीं है, इसमें आपको 2 रेगुलेटर लग जाते हैं, स्टेट बैंक एंड SECP. ब्रिलियंट. तो वो जब लग जाते हैं आपको, एंड देन द गवर्नेंस इज नॉट लाइक कि मैं आई एम द ओनर ऑफ दैट कंपनी और बस मेरी मर्जी से चल रहा है. देन बोर्ड बनता है. बोर्ड आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इससे कि प्रॉपर माइक्रो फाइनेंस बैंक और एनी बैंकिंग जो भी कंपनीज होती है जिसका 7 बंदों का बोर्ड होता है, फिट एंड प्रॉपर होता है, SVP अप्रूव करता है, CEO के पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, SECP उसको अप्रूव करता है, उसकी कंप्लाइंसेज हैं, रेगुलर कंप्लाइंसेज हैं. सो देन दैट गिव्स दैट कॉन्फिडेंस टू द. सो ये एक रियलिटी बन गई है ये पाकिस्तान में. इट इज. लेकिन अब वही बात है, उससे कुछ लोग जो मतलब आई जॉइंड द ग्रुप इन 2022. The group was in operation since 2016. The reason that we could go for REIT was because 2016 से the first transaction was also done on the legal basis के ऊपर. Right. Legal documentation ये वो. Okay. So वो आपको पूरा चेक करते हैं. It's not an easy thing to get that license. अब मैं अगर 2022 में आया हूँ और मेरे पिछले 6 साल में if the group has not performed on corporate governance mechanisms पे, so I would never have been able to get that license. Right. So you know it's चलें, at least there are checks and balances there and authorities हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं इसको और लोगों के लिए safe और attractive बनाने के लिए. फातिम, what's your forecast? क्या predict कर रहे हो अभी? आप लोग कोई फ्यूचर में हमारा immediate कोई ट्रेंड है? प्रॉपर्टी हमारी ऊपर जाएगी, हमारी प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या हो रहा है, लोग इन्वेस्ट करें ना करें? So 2025 is going to be the revival of real estate. Every industry goes through a boom and bust period. तो हमारा बस खत्म होने वाला है. हमारा बस खत्म हो चुका है. Right. The first 6 months of 2025 is the time to invest. Because this is the time जब वो जो इस टाइम को कैश करेगा, they get the highest returns इस टाइम के ऊपर. Obviously this period of boom will stay for another 2 to 3 years जो कि नॉर्मल एक लेगेसी ट्रेंड चल रहा है. Right. इसी रीज़न की वजह से अभी हम प्रॉपर्टी एक्सपो भी करा रहे हैं फॉर रिवाइवल ऑफ रियल एस्टेट, बिकॉज रियल एस्टेट वाज हिट रियली बैडली इन द पास्ट 2-3 years. वही बात ही, लैक ऑफ प्लानिंग, ट्रांसपेरेंसी, मैल प्रैक्टिस, लोगों के पैसे डूब गए, बाकी कंपनियां बंद हो रही हैं, इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस शेक हो गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको बैक नहीं कर रहे. यू नो देयर वाज लाइक काइबर was going high up. That I was going to say कि Khyber was also one of the factors here. तो मैं एज ए इंडिविजुअल अगर हूँ तो मेरे पास एक रियल एस्टेट ऑप्शन है और मेरे पास एक बैंकिंग ऑप्शन है. दोनों मुझे ऑलमोस्ट मिररिंग ही रिटर्न्स दे रहे हैं. सो आई वुड गो फॉर द बैंक ऑप्शन. मगर अब नहीं, अब काफी नीचे आ गए. Khyber are coming down. तो फिर लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे. अब उसमें एक और मसला भी था ना, इकोनॉमी वाइज जब बहुत सारे लोग उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, अब बैंक ने भी पैसे बनाने की लैंड करना. अब अगर Khyber इतना हाई है तो मैं तो एज ए लोन तो नहीं दूंगा. सो देन दैट वो कैपिटल इंट्रैपमेंट वाली एक चीज़ में आप फंस जाते हैं, जो कि शुक्र अदा का अब नाउ द कैपिटल इंट्रैपमेंट गोइंग डाउन. Right. So through this property expo, what we are doing is that we are going to be again educating जो हमारी general public है, whoever is going to come, regarding revival of real estate. We want to collaborate because the one thing that we have learned in our 9 years over here is that आप without collaboration with even your peer competitors आप नहीं चल सकते, because this industry is so fragile.
उनका कोई भी चीज़ अगर उनके साथ गलत होगी तो इट विल हैव अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऑन यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो द बेटर थिंग टू डू इज़, जैसे टेलकोस करते हैं, उनका एक इंडस्ट्री फोरम है, एंड वी होप टू स्टार्ट ऑफ इसी तरह का एक इंडस्ट्री फोरम, एंड कोलैबोरेशन इज़ द मेन थिंग जिसके थ्रू हम सक्सेसफुल इसको रख सकते हैं और रियल एस्टेट को थोड़ा ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं. वंडरफुल. पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ पॉलिसी भी सपोर्ट नहीं करती, बट अब कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं. और क्रिप्टो के साथ एक दुनिया में एक नया ट्रेंड भी आ रहा है जिसको टोकनिज्म कहा जा रहा है. टोकनाइजेशन, राइट? तो वो भी पाकिस्तान में अब फोर्सी कर रही हो, आएगा? we are working on it. We are trying to get पहले खुद थोड़ा बहुत उसकी वर्किंग हम करके, and then we will present a concept paper and let's see, let's hope. और टोकनिज्म इज बेसिकली आप फ्रैक्शन में भी आप इन्वेस्ट कर So सकते हैं. basically क्या है मैं आपको थोड़ा बड़ा सा समझाएं सिंपल यार. सा समझाता हूँ. Okay, so what happens is कि टोकनाइजेशन में, so what students वगैरह के साथ हो, या even for working individuals, वो होता ही है कि उनके पास फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट में इस वक्त 20-30 हज़ार 50 हज़ार रुपये पड़े हैं. राइट. अब अगर टोकनाइजेशन आ जाए यहाँ पे, सो व्हाट दे डू इज दैट दे कैन, वो उसको स्वाइप करते हैं, एंड देन दे सी ऑप्शंस हमारे पास डिफरेंट मॉडलिटीज़ में क्या है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है, यू नो स्टफ लाइक दैट. वो उसको स्वाइप करते हैं एंड दे मूव इट इनटू स्टॉक्स और इनटू रीट्स और इनटू रियल एस्टेट और इनटू गोल्ड, व्हाटएवर इज द ऑप्शन ओवर देयर. अब उन्होंने मूव कर दिया. अब उसके अंदर देयर इज अ लिमिटेशन, एक फैक्टर रहेगा 7 दिन, 1 दिन, डिपेंडिंग ऑन द कोलैटरल जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया, राइट? अब वो कहते हैं यार मेरे पास अभी हफ्ता 10 दिन बाद वो वापस विद द स्वाइप ऑफ द बटन वो वापस कर देते हैं. सो दैट 50,000 माइट हैव बिकम 51,000, 52,000, 53,000. बट दैट गिव्स यू एज अ डेवलपर एक्सेस टू बिलियंस ऑफ रुपीज. ऑफ कोर्स. और आपका जो एक आम इंसान भी है जो आपका पॉपुलेस के अंदर, वो भी उसका पार्ट बन सकता है. That is because amazing. the problem with real estate is ना कि इसका the ticket item is big. Exactly, right? हाँ. It's nothing is less than $1 million. Let's be honest on it, right? Anything below $1 million is not worth it. at least आपके मेजर किसी इलाके में ऐसी कोई जमीन नहीं है जो आपको सस्ती मिले. Even $1 million भी आपको पूरी जमीन नहीं देता वो, मतलब $1 million as a shop वगैरह, you know, in a small in a mall, small shop or in a far flung mall or a plaza, a big shop, whatever, उस तरह की आपको वो देता है. पर अगर आप उस और उसका अब हम उसको इस तरह देखते हैं, रेंटल यील्ड उसकी क्या आ रही है. सो फॉर अ कमर्शियल द रेंटल यील्ड शुड बी अराउंड 4 to 5%. डू यू थिंक $1 million कैन गिव यू अराउंड 50,000 रुपये? नहीं, वो आपको देगा 10,000, 15,000, बहुत ज़्यादा हुआ 20,000. तो रेंटल यील्ड जस्टिफाई नहीं. राइट. थ्रू दिस टोकनाइजेशन उसके पास पड़े हुए 1-2 लाख रुपये उसने मूव किए, उसको वापस आए 15-20% सेफ, backed by a regulator who is keeping a close watch on it. You are accessing billions and trillions of rupees. If you remember, आपके बैंक में भी शायद ये बात होती होगी कि around on an annual basis 7 trillion rupees are outside the banking channels in Pakistan that circulates. बिल्कुल ऐसे ही. Outside the banking channel, right? Now just imagine that you get even 1% of that 7 trillion into this tokenization. That brings around 7 billion rupees on an annual basis into the economy, जो कि बाहर थी. मतलब वो पैसे जो 7 बिलियन थे वो जो डॉक्यूमेंट नहीं थे, बट वो आप पॉसिबिलिटी है कि वो आ सकते हैं. वो पैसे नहीं बना रहे थे, राइट? सो मैं 7 बिलियन रुपये, मतलब मैं 20,000 रुपये अगर मेरे पास पड़े हुए करंट अकाउंट में, वो बेसिक खर्च करने के लिए पड़े हुए. इट्स नॉट ब्रिंगिंग, मुझे वापस कोई पैसे वो नहीं दे रहे. अनलेस मैं उसको सेविंग में मूव करूँ, एंड देन ऑब्वियसली द होल FD वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें वगैरह मुझे. सो इट्स अ रियली कूल कॉन्सेप्ट. बहुत इस पे काम करने की ज़रूरत है. नहीं, आ जाएगा इंशाल्लाह, मतलब नेवर से नेवर, लेकिन इस पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. एंड पाकिस्तान का यही वो है कि इफ़ वी डू समथिंग विद प्लानिंग, यहाँ पे इतना स्कोप है कि अच्छा, देयर इज गोल्डमैन सैक्स और इसकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहते हैं कि इन द नेक्स्ट 20 years or something, Pakistan की economy will become 1 trillion if it goes the way it is. Unplanned planning. Right. 1 trillion in real estate वगैरह इस तरह की बात करो. Unplanned घर बनना, ये बनना, वो बनना. पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है in the next 20 years around 2 करोड़ घर, more or less, मोटा मोटा. Because we have the youngest demographic in the world, right? जो लोग आपस में अब
obviously under 21 they get married, have families, move out. Right. So इतनी आपकी requirement होगी in the next 20 years. अब अगर आप उसी चीज़ को प्लान में करें, so that 1 trillion can easily become 4 trillion. Right. It's just about the planning part of it. But अभी planning शुरू हो गई है. Yeah, hopefully, inshallah. Well, people like you and companies like Imarat और इदारे like Krana and Agency 21 and everybody, तो आप लोग मिल के जो एक शिफ्ट लेकर आ रहे हो हमारी इस इंडस्ट्री में, होपफुली इसके डिविडेंड्स हमें भी देखने को मिलेंगे बहुत जल्दी. Inshallah, we are trying our best. What's next for you? Personally, इंडस्ट्री तो हमारी बड़ी अच्छी तरफ जा रही है, सब कुछ कर रहा है. What is Fatim up to now? Fatim busy हैं काम में या कोई पर्सनल फ्रंट पे कुछ कर रहे हैं आप? No, I'm quite busy to be honest on इन्हीं चीज़ों के ऊपर. See, जब आप अपना करियर शुरू करते हैं ना, it's more or less like एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, पे चेक आ रहा है, आपको थोड़े बहुत पैसे बढ़ गए, आप उस पर खुश हैं. पहले आपने जब जॉब स्विच करते हैं, आपको जब एकदम से वो जंप लगता है, आप दैट्स अ थ्रिल और टुगेदर, यार इस महीने ना वो ₹1,00,000 ऊपर मिलना है, एंड आप वो प्लानिंग वगैरह करते हैं. Then once you hit around 15, 16 years of your career, then you start looking at the stability aspect of it and what helps you, right? So the thing with my current organization, Imarat mein ye hai ki now I've been given a vision of 25 years. Now it's my patience, my strength and my endeavor if I can sustain it. I have been given a vision. And that vision जो आपने पहले एक बात की थी माइक्रो फाइनेंस में, जो मैंने कनेक्ट किया उस टाइम पे, कि एक लोन ने एक बंदे की ज़िंदगी बदल दी. Now imagine if we are able to even achieve 20-25% of what I have said, how many lives can we change? Wow. So it's a mission that we are on. I am a part of this mission. Allah kare, I have the strength to deliver as much as I can and be a small cog in the big machine, which might help the nation in the future. Wonderful. Thank you for sharing such amazing insights about yourself and about the industries that you've been a part of. Mazidar conversation thi. I've learned a lot from you. And I really hope that we can do this again sometime, Fatim. Thank you so much. Let's do it post of rose वगैरह कुछ कर दे. So you can, for sure. You can give me at least चाय तो दे सके ना. For sure. Thank you. Thank you for your time. Take care. This is the show where I speak to professionals, corporate leaders, thought leaders, entrepreneurs, कुछ ऐसे लोग जो कि आपके इर्द गिर्द हैं और बहुत कुछ नया कर रहे हैं, कुछ तब्दीलियां ला रहे हैं, कुछ दुनिया को सिखा रहे हैं, और इस शो के ज़रिए मैं और आप उन लोगों से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. सो इफ़ यू मेड दिस फार इनटू द वीडियो, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए इस तरह के और भी मज़ेदार इंटरव्यूज़ लेकर आ सकें. थैंक यू.